So today we are going to start with the concept of roll-up summary. Roll-up summary is, first of all, what is a roll-up summary? See, the roll-up summary is a kind of read-only field. When we go to any of the object, let's go to this position object. And if I try to click on this new button, and then probably with the detail layouts. So let me open with any of the position record. Now see, there are few fields over here that are editable. Then there are few fields that are not editable. If I put my cursor over this particular field created by, or rather the last modified by, you see, as soon as I put my cursor, the kind of symbol, the kind of icon, what you see on the right is logged. That is something, it's a read-only field. But if I make, if I make it over here, it's an editable field. See, as soon as I double click over here, it's an editable field. If I put my cursor over here, see how does the symbol looks like, and how does the icon that appears in front of this field looks like. You see, it's a read on. It's a read write field. That means you are editable. This field is actually editable, and you can edit something. But then there are few fields which cannot be edited. I cannot change the value of created by over here. By making a double. Even if I make a double click, nothing happens. Why? Because this field is locked. The value inside the field is locked. That means it's a read-only field. Your roll-up summary is also a kind of a read-only field. Roll-up summary is also a kind of read-only field. So the value what is being there inside the this roll-up summary, we cannot edit that. And how these values are generated? There are 4 aggregate functions for that. When we set up the roll-up summary has 4 different types of aggregate functions: count, minimum, maximum, and the sum. These are the 4 aggregate functions what we can use inside the roll-up summary. These are the only 4. Okay, that means apart from these 4, you otherwise cannot set up any other thing. Apart from these 4, you cannot set up any other formula fields or something else to that. So roll-up summary is a kind of read-only field which generates some of the values. Now I'm just going step by step. I'm just going step by step so that you could understand it, what exactly this roll-up summary and how it is generated, the values and everything. So first of all, roll-up summary is a kind of read-only field. Whatever the value it's going to display, the value is being generated with the help of any one of the formula. There are 4 different types of functions. There are 4 different types of formulas that are working behind. And you need to select one of them. One formula per roll-up summary. That is the concept. One function per roll-up summary. So either I could select the count and then minimum, maximum, sum. Now this, if I'm selecting as a count, okay, fine. If I'm selecting as a sum or minimum or maximum, where does this, to whom these values are going to be assigned? Well, if it is giving me the count, then it will give me the count of whom? Okay. If it's giving me the minimum and the maximum values, then these values are coming from where? If it is calculating the sum, then it's calculating the sum of what? Right? So see, the roll-up summaries actually always calculate the value. These all functions, these all aggregate functions are applied on the values, on the records from the child object. Remember this, from the child object. That means roll-up summary will calculate count from the child, minimum, maximum from the child, and sum from the child. These all functions, whatever we could use inside the roll-up summary, they are going to be applied on the records of child object only. Always remember that. So whenever we set up this roll-up summary, although we have discussed this during the difference of this master detail and lookup, there also we have discussed. The roll-up summary can only be set, if the relationship is master detail. If the relationships are master detail, these fields are actually always created on the parent object. Let me tell you, roll-up summaries are always created on the parent object, but it will indicate the value from the child. That means for this parent, what is the count of child? What's the minimum and the maximum value present inside the child? What is the sum of all? For example, there is a field called as annual revenue field. Inside the child object, probably there is a field called as annual revenue. Then what is the sum of annual revenue? So these all functions are going to work on the records of child object, but roll-up summary is something that is created on the parent object. Always remember that the roll-up summaries are always created on the parent object, but it's going to give you
the count, the minimum, maximum, and whatever the kind of functionality you have demanded is going to make a calculation on the records of the child object. Now, on a single object, we could maximum create 25 roll-up summaries, not more than that. So this is the point. The roll-up summaries are always created on the parent, but whatever the value it will, it will going to revert. That value is from the child object. But one more thing, one important thing, the roll-up summary is applied only in case of master detail relationship. If the relationship is lookup, you can't apply the roll-up summary, right? There's only one lookup relationship between account and opportunity. So this is the only lookup relationship where I could create a roll-up summary. We can create a roll-up summary between account and opportunity, though the relationship type is lookup. So this is the only lookup relationship. Otherwise, apart from this, between any object, if at all you wanted to use the roll-up summary, the relationship type must only be master detail. Okay. Let's start with the use case so that we could understand it in a better way, right? So let's go with this. Configure a roll-up summary for the position object. Let's consider a roll-up summary for the position object. And what we wanted to represent, for the position how many child and how many candidate has been applied for every position. Who's the parent? Parent is position. Who's the child? Candidate. What kind of function here we want? We just wanted a count. That means for every position, how many candidate has been applied. So let me first of all go and evaluate these two objects. Let me go with the candidates. Let me create a few more records because for applying the roll-up summary and to understand, I for sure require some of the sample records. So let me create few of the records over here. Example. Sample.com, and then Akshay is applying for a position of sales manager, and this is the contact number of Akshay. Location is Hyderabad. Let's make some changes over here because this is one of the field. I make it as a unique field here. This is the current CTC and this is the expected CTC. Year of experience. What happened because of फिर से करना पड़ेगा. Okay, so @test, and he's applying for this position, sales manager. This is the contact number. Copy the same inside this. Let's save this. I'll do one more thing. ये जो पैन और पासपोर्ट को मैंने यूनिक कर रखा है ना, यूनिक से हटा देता हूँ. Otherwise, every time I need to enter the individual values for that. Make it, let it be required. आपको concept समझ में आ गया ना? मैं इसको यूनिक से हटा देता हूँ, पैन नंबर को और पासपोर्ट नंबर, so that I could duplicate it. वरना हर बार मुझे एक नया वैल्यू एंटर करते रहना पड़ेगा यार. Then let's once again, this was PAN number, the passport number also I wanted to do the same thing. So ये भी unique है इसलिए इसको हटा देता हूँ unique से. It's become feasible, otherwise फिर कैसे है ना, मुझे हर बार नया वैल्यू एंटर करना पड़ेगा. चलो, so these two are now like, and then let's go with the next kind of record. Let me enter. Has to be get@test.com, and probably he's applying for the position like software tester manual. This is the contact number, current CTC, PAN number, expected CTC, notice period 7 days, year of experience 5,
This is the qualification, and let me save this. Okay, let me create another record for this. So the next is like the Divya. Probably she's applying for the position HTML programmer, and let's go with the detail. Notice period is immediate. Any more changes? Location I would like to change. Let it be by, and then save it. Clone this record once again and create another record. So I have JYOTS Josna. And then she's applying for a position of Oracle admin. And let me go with the default selection. Save it. Let me clone the record once again. And for this position, I have one more candidate who is Khushali, USH, LI Khushali. She's applying for the same position so that I could show you something, Save it. For the Oracle admin, let me have one more candidate who is applying for the same position. Let's take it as a run. So she's also applying for the same position, Oracle admin. Let me now save this. And let me create few more positions, like there's a position where Prajwal is applying. So it's like, Prajwal@test.com. And she's applying for a position because I just wanted to cover entire position so that, I could show you something. Okay, Yash is asking me that some kind of network issues, lecture is lagging. I don't know, it's from my end, probably it could not be. It could be with your end, Yash. बाकी लोगों को क्या कहना है इसके ऊपर में, मतलब ऐसा हो रहा है क्या that my voice is not matching with the audio video, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? See, बाकी लोगों का कहना है यश कि सब कुछ सही चल रहा है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन बराबर है, तो प्रोबेबली आपके नेटवर्क का इशू होगा, बिकॉज मेरे एंड से मुझे नहीं लगता ये इश्यूज होंगे। हाँ देखिए, बाकी सभी का कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप एक बार अपने नेटवर्क को थोड़ा सा चेक कर लेना। Okay, so now I think I have sufficient records inside the candidate objects. I have sufficient records in the candidate object. तो आप देख सकते हैं कि these are the candidate and they have applied for all these positions. Fine. Now, अब मैं वापस use case पे आता हूँ आपको। अब use case क्या कह रहा है कि I just wanted to know for every position how many candidates has applied. If I go to the position object, if I go to the, let me just close this all. Yeah. So if I go to the position object here, and I press this button, go. So these all are the positions, these all are the positions. I just wanted to see how many candidate has applied for this position. अभी मेरे पास कोई ऐसा डायरेक्ट फील्ड नहीं है यहाँ पे, अगर मुझे देखना है कि फॉर HTML प्रोग्रामर फॉर जावा कितनों ने अप्लाई किया, तो एक्चुअली अभी यहाँ से मुझे कुछ नहीं दिखने वाला, Inside the position object, I will get nothing because I don't have any field who is going to represent that. वही तो मैं create करने वाला हूँ, but अभी नहीं है, तो अभी नहीं तो फिर कैसा करना पड़ेगा? I will go to over here, HTML प्रोग्रामर के लिए एक कैंडिडेट दिख रहा है, ठीक है, फिर और कोई है क्या? नहीं, तो फिर मैं नोट करूंगा, उसको मैनुअली करना पड़ेगा मुझे। Oracle admin के लिए I could see there are 3 candidates, software tester manual के there are 2 candidates, तो ये ऐसे देखना पड़ेगा, but this is not the feasibility। अभी ये तो 5-7 रिकॉर्ड है यार, 5,000-8,000 रिकॉर्ड होंगे तो क्या आप ऐसे चेक करोगे? ऑब्वियसली इट इज नॉट द वे, है ना। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ बिजनेस ऑटोमेशन फॉर दिस, देयर मस्ट बी सम वे टू फाइंड आउट कि एक एक कैंडिडेट को थोड़ी ना मैं पकड़ पकड़ के देखूंगा, भाई तूने काय के लिए अप्लाई किया, भाई तूने किसके लिए अप्लाई किया, ऑब्वियसली, है ना। तो ये नहीं है तरीका, तो हमें इसको ढूंढना है। तो हम ये कैसे करेंगे? दिस वी कुड डू विद द रोल ऑफ समरी। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू इज दैट
मैं देखो पहले अप्रोच बताया, प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये है अपना, प्रॉब्लम मतलब स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट बोलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। प्रॉब्लम मतलब परेशानी नहीं होता सेल्सफोर्स में सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है अपना, कि मैं अगर पोजीशन पे जाता हूँ, विद एवरी पोजीशन लाइक HTML प्रोग्रामर जावा, देयर मस्ट बी अ फील्ड ओवर हियर, एक कॉलम में क्रिएट करूँ, फील्ड मतलब ऑल दीज आर फील्ड्स, है ना, ये लोकेशन एंड देन हायरिंग मैनेजर, दीज ऑल आर द फील्ड्स ओवर हियर। ऐसी कोई फील्ड रहे जिसको जिसको देखने से मुझे ये पता चल जाए ऑन दिस पर्टिकुलर पेज कि फॉर एवरी पोजीशन हाउ मेनी कैंडिडेट हैज अप्लाइड, तो वो हम रोल अप समरी से क्रिएट करेंगे। दिस वी आर गोइंग टू गो डू विद द रोल अप समरी। लेकिन जब भी मैं रोल अप समरी लगाना चाहता हूँ, उसके पहले मुझे देखना पड़ेगा व्हाट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन पोजीशन एंड कैंडिडेट, क्योंकि रोल अप समरी कैन ओनली बी क्रिएटेड ऑन द मास्टर डिटेल। तो मैं चलो पहले मैं चलता हूँ, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ आपके स्कीमा बिल्डर पे, स्कीमा बिल्डर पे मैं पोजीशन और कैंडिडेट को ला लेता हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर इट एवरीथिंग फ्रॉम दैट एंड लेट्स गो टू द कस्टम ऑब्जेक्ट, पोजीशन और कैंडिडेट। ठीक है, इनको ला लेते हैं पहले यहाँ पे। ओके, अभी हम देख रहे हैं ना, यू कुड नाउ सी दैट बिटवीन द पोजीशन एंड द कैंडिडेट इट्स लुकअप रिलेशनशिप। पोजीशन और कैंडिडेट के बीच में आप देखो लुकअप रिलेशनशिप, लुकअप रिलेशनशिप पर वी कैन नॉट अप्लाई रोल अप समरी। सो व्हाट विल बी योर अप्रोच इन दिस केस, व्हाट विल बी द स्टेप नंबर 1? या कम ऑन, this is a problem statement. Now you understand how, what will be the approach you are going to follow. For this problem statement, the approach is we are going to create a roll-up summary on position object. You know, to solve this, I wanted to see how many different candidate has applied per position. I just wanted to see this. What will be your approach? Roll-up summary. But when you come to this, you know, when you analyze on the schema builder, you see that the position and the candidate, they are actually, you know, they are having a lookup relationship. So what will be the step number 1? Yeah, come on, guys. I just wanted to develop your approach in this. What will? Mhm. Convert into master details, sir. Exactly. Very good. Excellent. What the thing we first at all required to convert this relationship into the master detail. Okay. So if at all I wanted to convert this into the master detail, तो मुझे ये conversion कहाँ से start करना पड़ेगा? Candidate या position? Come on. I wanted to convert this field. Where should I go? Candidate में जाऊँ या position में जाऊँ? Yes. Second question है, बताइए. Candidate, sir. Exactly. Candidate, sir. Why? Because the relationship fields are always present inside the child object, right? Exactly. Let's go to the candidate first. ठीक है, कैंडिडेट में चलते हैं और इससे पहले कि आप रिलेशनशिप कन्वर्ट करो फ्रॉम लुकअप टू द मास्टर, देयर इज वन कंसीडरेशन, देयर इज वन कंसीडरेशन। व्हाट इज दैट? कम ऑन, व्हाट इज दैट? इससे पहले कि मैं लुकअप को मास्टर डिटेल से लुकअप में आने के लिए कुछ नहीं देखना पड़ता। दैट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ कन्वर्शन, कल हमने पढ़ा है। लेकिन आप लुकअप से मास्टर डिटेल जब भी जाते हो, व्हाट यू नीड टू एनालाइज? कम ऑन, यस, एनी वन ऑफ यू? यस, Every child have a Every parent. child must have a parent. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। What's wrong with Josna, Kushali, Kiran, Rajwal? Why you guys are not answering? स्टडी नहीं कर रहे आप लोग लगता है। ठीक है, एवरी चाइल्ड मस्ट हैव एन parent. These all are the child record. These all are the candidate. They must have been applied for a position. Let me bring that column over here so that I could see कि इनके लिए कौन सा position they have applied. So let me add this position also and let me save this. ऐसे एक एक रिकॉर्ड थोड़ी ना ओपन करूंगा मैं ऐसा अक्षय को देखूंगा किसका अप्लाई किया है, अंकित को ऐसा नहीं। Just bring that column over here and see whether you have any such record which has not applied. For example, मान के चलो I create one more candidate over here. You know, I create one more candidate. For example, I create like the candidate called as Sohail. ठीक है, Sohail Khan, and this. Okay, but I haven't selected any position for him. That means Sohail is there a candidate who haven't applied for any position. Chalo, create the records and let's save this. Okay, now let's go to the candidate object, click on the all candidate. So you probably now see that all of the records are associated except one. Now here if you try, you know, अगर आप अभी ट्राई करोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे। लेट मी डू दैट। कल मैं नहीं बताया उस चीज को प्रोबेबिलिटी, आज मैं बताता हूँ आपको। कल मैं क्या किया कि डायरेक्टली चेंज एसोसिएट किया उसके बाद में, और कल मैंने आपको बताया कि बल्क में अगर रिकॉर्ड एसोसिएशन है, बल्क में रिकॉर्ड अपडेशन है, इंसर्शन है, तो आप डेटा लोडर्स या डेटा इंपोर्ट विजार्ड या बैच प्रोग्रामिंग या फिर इन्फॉर्मेटिका क्लाउड या फिर एसक्यूएल क्वेरीज को फायर कर सकते हो। ठीक है,
तो वो कल हमने डिस्कस किया। लेकिन आज एक काम करते हैं, आज सोहेल का साथ देखो आप कि सोहेल इज वन ऑफ द कैंडिडेट हु हैवंट अप्लाइड फॉर एनी पोजीशन। फॉर दिस रिकॉर्ड देयर इज नो पेरेंट। लेट्स नाउ ट्राई टू कन्वर्ट द रिलेशनशिप। चलो व्यू फील्ड्स पे चलते हैं, कैंडिडेट की व्यू फील्ड्स पे, एंड दिस इज अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। कहाँ गया? कस्टम रिलेशनशिप, पिक लिस्ट, ऑटो नंबर, inside the candidate position is a lookup relationship. Sorry. Okay, let me try to convert this relationship. So position presently you see it's a lookup relationship. Let me try to edit this and see what's going to happen. Change the field type. I'm changing it from lookup to the master detail. Okay, so I selected the master detail. Let me click this next button, and let me go with the default selection. Everything I have removed the filters and everything. So let me now save this. See, you cannot create a master data relationship on the existing record if the record exists. So this is going to be happen. If you try that, this candidate doesn't have any position, and that is why it's not, Salesforce is not allowing us to do that. We haven't able to convert that. So what we should do, we should edit this record. Let's assign a parent for him. Let's give, everywhere it's editable. Okay, you just don't need to follow. आपको लंबी steps पे जाने की जरूरत नहीं. Everywhere it's editable. तो ट्राई टू यूज द इनलाइन एडिटिंग एज फार एज पॉसिबल, काम जल्दी होता है उससे। अदरवाइज तरीका क्या था, मैं सोहेल को ओपन करूं, एडिट करूं, है ना, इतनी झंझट क्यों? आई कुड डू द सेम थिंग ओवर हियर। मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे कर सकता हूँ, उसको पेरेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ, हियर आई कुड डू दैट, है ना, ऐसा भी कर सकता हूँ। बट ये आप वहां पर भी कर सकते हो, एवरीवेयर इट इज एडिटेबल। तो जितना हो सके ना, क्या बोल रहा हूँ कि जितना हो सके ना अपने नेविगेशन को शॉर्ट करो, ताकि आप जल्दी स्पीड में काम कर पाओ। यू सी, मैं यहाँ पे कर्सर ला रहा हूँ तो मेरे को एडिटेबल दिख रहा है। Why don't I take this benefit? तो मैं डायरेक्टली यहाँ से बेनिफिट लूंगा। लेट मी सेलेक्ट द पोजीशन फॉर हिम। सो इज अप्लाइंग फॉर जावा टेस्टर। लेट मी नाउ सेव दिस। हो गया, दैट्स इट। ठीक है, थिंग्स हैड बीन रिफ्लेक्टेड, हो गया। इफ यू वांटेड टू सी अगेन, रिफ्रेश कर लो, हो गई बात खत्म। नाउ डू द सेम थिंग, गो टू व्यू फील्ड्स। ठीक है, प्रेजेंटली वी कुड सी दैट दिस इज अ लुकअप रिलेशनशिप, पोजीशन नाम है इसका। लेट्स एडिट दैट। I'm repeating the same step, nothing else. Change the field type. Change it from lookup to the master detail. Click the next button and save it. Let's see what happens right now. हो गया conversion. That's it. हो गया, इतना ही था. Why? Because now every child record have a parent. है ना? If now I go and refresh this over the schema builder, I could see that these two are now related in what? The master detail relationship. Now we could come back to our use case. चलो अब अपनी use case पे आते हैं. What was my use case? If I go to the position object, I wanted to see for every position record how many candidates has applied. How many candidates has applied. तो अभी ये नहीं दिख रहा है मुझे. If I go to HTML programmer, I don't have any such field which indicates me कि HTML programmer के लिए number of candidates कितने हैं. So that is what I'm going to create. So let's create a new field. And roll-up summary. Roll-up summaries are always created on the parent. So parent is position. Let me create a new field. Let's go with this navigation, new. What kind of field? A roll-up summary field. Okay. Click the roll-up summary, click the next button. Give the name. So here I wanted to give a name, let's say candidate count. Okay, how many candidate has been applied for this position? I just wanted to have a count for that. So once you select this, click the next button. So on the same page, it will ask you, okay, your position is the master object. The position is the parent, and who's the summarized means who is the child. Child is candidate. Select the list. If there are two child for this position, के लिए अगर दो child होते, तो वो दोनों के नाम यहाँ पे आ रहे होते हैं, या आपको select करना पड़ता कि इसमें से आपको कौन सा child चाहिए. So I just wanted to have a candidate. Now out of these four function, what kind of function you? अब आपको सोचना पड़ेगा. Here there's something which you need to analyze कि मेरे operation के हिसाब से मेरे को क्या चाहिए. तो अभी तो कैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको मतलब एक पोजीशन के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया है ना, वो आपको चाहिए कि एक कैंडिडेट एक पोजीशन है तो उसके लिए कितने लोगों ने अप्लाई कर रखा है. तो सिंपल मीनिंग है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, यू जस्ट वांटेड टू सी द काउंट. यहाँ पे जो फंक्शन आपने यूज करना है दैट इज काउंट. तो काउंट लेता हूँ मैं ना. एज सून एज आई क्लिक द काउंट एंड देन ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड, ओनली द रिकॉर्ड्स मीनिंग द सर्टेन. नहीं, आई जस्ट वांटेड टू सी ऑल रिकॉर्ड्स विदाउट एनी फिल्टर. ये सेकंड वाला मैं सेकंड एग्जांपल में लेता हूँ. आई विल मेक अ स्लाइड complications in that. एक दो चीजें बढ़ाऊंगा, बट अभी इट्स प्रीटी सिंपल. आई जस्ट वांटेड टू सी द काउंट, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, उसमें कोई ज्यादा अदरक लहसुन नहीं चाहिए मुझको, है ना. क्लिक द नेक्स्ट बटन.
ठीक है, सो make it visible for every profile user and then click the next button. Let it be landed on the default layout position, layout पे ही लैंड होने तो सेव कर लो, हो गया। That's it. Great. तभी देखो आप एक नई फील्ड बनाई है कैंडिडेट काउंट, जिसका डेटा टाइप क्या है, व्हाट्स द डेटा टाइप, रोल अप समरी, जो कौन सा फंक्शन यूज कर रही है, काउंट फंक्शन। थोड़ा भी ऑब्जर्व करो ना, अब आपको सारी चीजें यही नजर आ जाती है। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप किसके साथ एसोसिएटेड है, हायरिंग मैनेजर के साथ। ठीक है, इस तरह से एवरीथिंग इज अप इन अभी ये काउंट कर रही है, इट्स कैलकुलेटिंग इन दिस फील्ड इज करेंटली बीइंग कैलकुलेटेड, देखो। ठीक है, यू रिफ्रेश इट, यू विल केम टू नो कि हो गया, हाँ हो गया, मतलब कैलकुलेशन डन, एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल विथ। लेट्स नाउ गो टू द पोजीशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं अगर मैं पोजीशन ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और कोई भी पोजीशन को ओपन करता हूँ, यहाँ पहले देखो यहाँ कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कैंडिडेट काउंट नाम से कोई फील्ड है क्या, अभी नहीं है। आई जस्ट नाउ हैव क्रिएटेड, सो लेट मी रिफ्रेश दिस। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, आई हैव वन फील्ड ओवर हियर, अभी एक फील्ड मेरा बन के तैयार है यहाँ पे, कैंडिडेट काउंट, and it's indicating me कि for this position HTML programmer I have one candidate who's applied। ठीक है, अब ये अंदर अंदर में देख रहा है, इसको बाहर भी लेके आता हूँ मैं आपको, यहाँ भी लाता हूँ। लेट मी go with every position, तो HTML रिकॉर्ड हो गया। now let me see with the Java programmer, Java tester, Oracle admin, sales manager, software tester। ठीक है, तो यहाँ पे okay, let me close this। हाँ, for this Java developer no candidate has applied। for this what is the Java tester, there are two candidates, those have applied this। और Oracle admin there are three candidates, है ना, तो ये अंदर में नजर आ रहा है मेरे को। सेल्स मैनेजर आई नीड टू ओपन द रिकॉर्ड फॉर दिस वन कैंडिडेट, फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टर टू कैंडिडेट, है ना, ऐसा। तो ये आई नीड टू ओपन दिस रिकॉर्ड एवरीवेयर। तो वही, उससे अच्छा ये कि मैं यहीं पर लेके आ जाता हूँ, एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सो दैट व्हेन एवरीवन सी द रिकॉर्ड्स, है ना, जब यहाँ पे पोजीशंस डिस्प्ले हो तो साथ ही साथ ये भी डिस्प्ले हो जाए कि उसके लिए कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। सो लेट्स एडिट द कॉलम एंड ब्रिंग वन मोर फील्ड, कैंडिडेट काउंट। थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं इसको, पोजीशन नेम कैंडिडेट काउंट, लाइक दिस, सेव इट। कैंडिडेट काउंट वही जो अभी आपने फील्ड क्रिएट किया, रोल अप समरी। तो अब ये यहाँ पे ज्यादा फिजिबल है मेरे हिसाब से, कि विद एवरी पोजीशन आई कुड नाउ सी कि हाउ मेनी कैंडिडेट हैज अप्लाइड, राइट। फॉर एवरी पोजीशन हाउ मेनी कैंडिडेट हैज अप्लाइड, like for Oracle admin there are three candidates। okay, let me make few changes, let's go to the candidates and let's see that for the Oracle this guy has applied। let me bring few more columns। एक्सपीरियंस को ऐड करता हूँ, लेट मी मेक सम चेंजेस सो दैट इसके बाद का मैं आपको कुछ बता पाऊँ। फॉर द ओरेकल एडमिन 555, लेट मी मेक सम चेंजेस ओवर हियर। ओके, सो ये दो रिकॉर्ड में मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। सो वन ऑफ द कैंडिडेट इज Abhinav Sharma, he's also applied for Oracle admin and he's having what I am opening guys, कैंडिडेट का रिकॉर्ड, अच्छा 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 अच्छा, Oracle admin गलत रिकॉर्ड ओपन कर रहा हूँ, किरण एंड जोशना, दैट इज व्हाई। हाँ, so this candidate Kiran has applied for Oracle admin and she's having year of experience is 5, let me reduce it to 2, save it। and then one more candidate is Josna, she's also having 5 years of experience, let me reduce it to 3, save it। okay, मैं यहाँ जाता हूँ तो कोई चेंजेस नहीं है सच, यहाँ पे अभी कोई चेंजेस नहीं है। लाइक फॉर द ओरेकल एडमिन 3 कैंडिडेट हैज अप्लाइड, राइट। इफ आई गो टू द पोजीशन हियर आल्सो कोई चेंजेस नहीं है सच, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा अभी। बस मैंने क्या किया कि 3 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, तीनों के एक्सपीरियंस में ऊपर नीचे कर दिया। वाई, फॉर द नेक्स्ट यूज केस हमारी ऐसी है, नेक्स्ट यूज केस यही कह रहा है हमको कि नाउ वंस यू गेट दिस, कि अगर आपको ये पता चल जाए अभी कि फॉर एवरी पोजीशन हाउ मेनी कैंडिडेट हैज अप्लाइड, ठीक है, आपको ये जब पता चल जाए कि HTML प्रोग्रामर के लिए कितनों के रेज्यूमे आए हैं, जावा डेवलपर के लिए कितनों ने अप्लाई किया है ना, वंस यू नो दिस, तो एक फिल्टर और लगाएंगे अपन यहाँ। ठीक है, अब हम एक फिल्टर क्या लगाएंगे इसमें से कि चलो हम ऐसा करते हैं कि इमीडिएट जॉइनर्स को ढूंढ के निकालते हैं। ठीक है, इमीडिएट जॉइनर्स को ढूंढ के निकालते हैं, और या फिर हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं, इमीडिएट जॉइनर्स को ढूंढ के निकालते हैं।
फिर उसके बाद में दूसरा क्लॉज लगाता हूँ, ठीक है। लेट मी वंस अगेन गो बैक टू दिस। ज्योत्सना और किरण के रिकॉर्ड में थोड़ा सा एडिटिंग और करता हूँ मैं। बोथ ऑफ देम आर इमीडिएट, तो आई विल मेक दिस एज 7 days। लेट मी नाउ सेव दिस फॉर ज्योत्सना एंड 15 days। लेट मी नाउ सेव दिस, ठीक है। चलो, so now we have this all positions। अभी positions है यहाँ पर as it is, these are the candidate। now let's apply few more filters। अब इसमें मैं थोड़ा सा और filterize कर रहा हूँ इसको, कि अभी आपको ये देखना है कि इसमें से कितने immediate joiners है, ठीक है। और बाद में हम ये भी देख सकते हैं कि कितनों के एक्सपीरियंस जो है इट्स लाइक यू नो अबव इक्वल्स टू और अबव 4 than 5 years है, वो आप बाद में देखो, ठीक है। पहले ये देखो आप, ये वाला ये सिंपल है इसलिए पहले इसको देख लो। सो अभी जैसे कि मुझे देखना है कि इतने सारे कैंडिडेट अप्लाई किए, तो इसमें से कितने इमीडिएट ज्वाइनर्स है। जो इमीडिएट ज्वाइनर्स है उनको पहली प्रायोरिटी देंगे अपन, ठीक है। चलो, सो अभी एक और रोल अप समरी बनानी पड़ेगी मुझको। कहाँ बनाना पड़ेगा, फिर से पोजीशन ऑब्जेक्ट में, कि ऑफ दीज आर द कैंडिडेट्स, तो इसमें से कौन कौन से कैंडिडेट है जो इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं पोजीशन ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। लेट मी क्लोज ऑल दिस, ठीक है। पोजीशन ऑब्जेक्ट में जाने के बाद फिर एक और रोल अप समरी क्रिएट करना है। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फील्ड। व्हाट टाइप, रोल अप समरी, ठीक है। क्लिक द नेक्स्ट बटन। नेम दिस फील्ड हैज टू बी द इमीडिएट जॉइनर्स, ठीक है। इमीडिएट जॉइनर्स नाम देता हूँ मैं इसका। उसके बाद में हाँ, हियर द समराइज ऑब्जेक्ट इज कैंडिडेट। हियर आई वांटेड टू सी अगेन द काउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक कैलकुलेशन करना है। काउंट तो चाहिए मुझे, लेकिन किस चीज का काउंट, इस चीज का चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स जिसका नोटिस पीरियड, हाँ नोटिस पीरियड, ऐसे कैंडिडेट जिसका नोटिस पीरियड इक्वल्स टू इमीडिएट हो, ठीक है। इमीडिएट हो ये। और साथ ही साथ अगर मैं इसको और एक्सटेंड करना चाहूँ, तो मैं ये देखूं कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ये सेकंड कंडीशन थी जो मैं इंपोज करने वाला था, बट चलो फिलहाल अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। बट हाँ, सेकंड कंडीशन यही रखने वाला था मैं, बट अभी उसको फिलहाल निकाल के पहले इतना ही बताता हूँ। इसमें फिर आगे और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कंडीशन यही लगेगा आपका, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। तो फिलहाल मैं वो कंडीशन नहीं रखता हूँ। आई जस्ट पुट दिस कंडीशन कि मुझे आउट ऑफ द एवरी कैंडिडेट, आई जस्ट वांटेड टू सी कि भाई इसमें से कितने ऐसे कैंडिडेट जो इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं, तो अपन पहले उनको प्रेफरेंस देंगे, उनके कॉल्स लगाएंगे। So I have imposed one of the condition. I just wanted to have the count. लेकिन count of what? Count of only those candidates, those who can join it immediately. So let me click this next button and go with this next, and then save it. So one more field is being created. One more field is created. Immediate joiners के नाम से यहाँ पर एक field, चलो उसको भी ला लेते हैं. Let me first of all refresh this. After refreshing, let me go and edit columns. Let's have that column over here. तो एक फील्ड हमने इमीडिएट जॉइनर्स के नाम से अभी किया, उसको ऐड कर लेता हूँ और कैंडिडेट काउंट के नीचे में उसको रख लेता हूँ। लेट मी नाउ सेव दिस एंड सी हाउ डज दिस लुक्स लाइक। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि ओरेकल एडमिन के लिए 3 लोगों ने अप्लाई किया था, बट आउट ऑफ दैट 3 ओनली वन इज द कैंडिडेट, लाइक हु कुड जॉइन इट इमीडिएटली। बाकी 2 जो है वो इमीडिएटली नहीं ज्वाइन कर सकते। सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया था, आउट ऑफ दैट 1 कुड बी ज्वाइन इमीडिएटली। अगर मुझे एक क्लॉज और चाहिए जिसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा हो, ऐसे कैंडिडेट, तो फिर एक और रोल अप समरी क्रिएट करो। तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट पे आप मोर देन 25 बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 25, नॉट मोर देन दैट, 25 रोल अप समरी कर सकते हो क्रिएट, ठीक है। एक और फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ मैं, रोल अप समरी, फिर से एक रोल अप समरी, किस नाम से, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के नाम से, है ना। लेट मी क्रिएट वन ऑफ द फील्ड, एक और फील्ड क्रिएट करके देखता हूँ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के नाम से। हियर आई अगेन वांट द काउंट, कैंडिडेट पे काउंट ही चाहिए मुझको। कैसा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, 2 या 2 साल से ज्यादा, ठीक है। ऐसे कितने कैंडिडेट है, चलो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, मेक इट विजिबल फॉर ऑल प्रोफाइल यूजर, क्लिक द नेक्स्ट एंड सेव इट, ठीक है। सो नाउ वी हैव वन मोर रोल अप समरी, एक और रोल अप समरी अपने बनके तैयार हो गई है। रिफ्रेश दिस, चलो अब चलते हैं यहाँ पे, एक और बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको,
edit columns. So let's have one more column, year of experience. Year of experience को ऐड कर लेते हैं. ये फिलहाल को हटा देता हूँ. ये ठीक है. Image जो है year of experience. Let me now save this. Now see how does the interface look like. तो HTML programmer is a position. Candidate कितने अप्लाई किया है? 1. कितने इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं? 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है. और जैसे ओरेकल में 3 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है. एक बंदा इमीडिएटली ज्वाइन कर सकता है और तीनों के एक्सपीरियंस जो है, तीनों के एक्सपीरियंस 2 साल से ऊपर है. ठीक है, ऐसा. तो इस तरह से ना आप एक्चुअली समराइज कर सकते हो उसको. इस तरह से बेसिकली आप समराइज कर सकते हो. ठीक है. अब बाकी के जो फंक्शंस है, जैसे सम आपको पूरा कैलकुलेशन करके देता है कि जैसे अगर मैं ये जानना चाहता था कि ओवरऑल एक मान के चलो कि एनुअल रेवेन्यू का फील्ड है. एनुअल रेवेन्यू फील्ड से मैं अगर ये कैलकुलेट करूं कि पूरा सम ऑफ ऑल एनुअल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, प्रोबेबली मान के चलो कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज लोन. ठीक है. और देयर इज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज बायर. तो बायर्स में जाता हूं मैं कि बायर का लोन अमाउंट क्या है, कितने रिकॉर्ड्स हैं. मान के चलो कि देयर आर 10% जिनको हमने लोन दिया हुआ है, तो उसका लोन अमाउंट कितना, उसको पूरा कैलकुलेट करो. सम. तो सम फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा कि फॉर दिस फिस्कल ईयर हमने इतना इतना लोन दिया हुआ है ना. तो वो कैसे आएगा? सम से. फिर आप मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन भी यहीं पर यूज कर सकते हो. जैसे एग्जांपल में गो विद दिस, आई एम टेलिंग यू दिस एज एन असाइनमेंट. आपको करना है, कोई सर वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सिनेरियो नहीं. आपको करना है ये कि आप क्रिएट करो लोन अमाउंट और आप करो लोन बायर, ऐसा कुछ क्रिएट करो ऑब्जेक्ट. 2-4 फील्ड्स क्रिएट करो उसमें, नेम, आईडी, जो भी आईडी नेम तो बाय डिफॉल्ट ही जनरेट हो जाएगा. कुछ और फील्ड्स क्रिएट करो कि लोन अमाउंट कितना था, सैंक्शन अमाउंट कितना हुआ है, जो कुछ भी आपको क्रिएट करना है. और फिर आप जो है इसमें मास्टर डिटेल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो ताकि आप रोल अप समरी क्रिएट कर पाओ. और उसके बाद में फिर देखो सम, मिनिमम और मैक्सिमम, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन किसको दिया गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन की कौन से उसको दिया गया, कस्टमर को. ठीक है. तो ऐसे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, लोन, कस्टमर, इस टाइप से. और फिर ये सारी बाकी की जो है वो अप्लाई करो. ठीक है. तो गो विद दिस यूज केस. सो कुछ और असाइनमेंट्स भी हैं यहाँ पे, यू कैन इवन गो विद दैट. तो कैंडिडेट्स हुज हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया आपको. बस आपको 2 को 5 करना है, तो इसको छोड़ दो. बाकी के 2 आप सॉल्व कर लो, और जो मैंने एक दूसरा बताया अभी वो सॉल्व कर. ठीक है. चलो, लेट्स नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड दैट इज 1-to-1. लेट्स फिनिश दिस अप राइट. एक आखिरी ये बच्चा, इसको कर ही लेते हैं. सो 1-to-1 रिलेशनशिप. ठीक है. 1-to-1 रिलेशनशिप. तो ये इसका सिनेरियो क्या है पहले तो मैं वो बता देता हूँ आपको, एंड देन I'll tell you कि फिर इसको कैसे establish करते हैं. So 1-to-1 relationships के लिए let's move on to once again the hiring manager. And hiring manager or position. So let's move on to the position object. Position object में अगर मैं जाता हूँ, and let me go with this, एक कॉलम और ऐड करता हूँ यहाँ पे, एक कॉलम और ऐड करता हूँ कि who's the hiring manager who's handling this position. Let me now save this. So now I could see that, HTML programmer, this position, इसका hiring manager कौन है? कशिश. Java developer, कशिश again, right? So अभी मान के चलो कि अभी क्लाइंट को हमने सेकेंड स्प्रिंट में इन्वॉल्व किया था, सेकेंड फेज ऑफ डेवलपमेंट में, एंड द आउटकम कम्स लाइक दिस. अभी फिर अब जब क्लाइंट का रिव्यू आया इस पे, क्लाइंट का रिव्यू ये है, क्लाइंट का ऐसा कहना है कि वी हैव सर्टेन चेंजेस इनसाइड आवर इंटरनल पॉलिसीज. हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉलिसीज में कुछ बदलाव हुए हैं, और जिसके तहत अभी एक नई चीज सामने आई है. वी नाउ हैव अ सर्टेन न्यू, a certain new kind of things inside the organization. What is that? Okay, now every hiring manager will only be associated with one position. But we don't want it to overburdenize our hiring managers. So yeah, previously, in the past it was like that कि हाँ एक hiring manager जैसे Kashish, Kashish is one of the hiring manager who's handling 2 positions. ये होता था, this was thing. तो आप उस हिसाब से आपका सही था, आपका जो business logic था वो सही था. But now we have certain amendments in the internal policies, and that is why what is the outcome now? Every hiring manager would be handle only one positions. If you certainly, if we by accidentally, probably if you don't know, and if you try, like for example, Kashish is already handling one position, and let's try, and I create a new position record, and if I try to allot Kashish the same position,
it should give me some error that this hiring manager is already handling some of the positions, so you need to select somebody else, something like that. तो मैसेज वही लोग प्रोवाइड करते हैं अपने को. कंसेप्ट समझा क्या आपको कि एवरी हायरिंग मैनेजर शुड एसोसिएटेड विद वन पोजीशन, and a hiring manager is the parent, you know that, and a hiring manager is the parent. So every parent record must have only one child. एक parent का एक ही child होना चाहिए. If this is the scenario, if this is the scenario, you must go with a type of relationship called as one-to-one. If this is the scenario, if this is the scenario, you must go with the kind of relationship called as one-to-one relationship. See, what really happens in one-to-one, for every parent, there must be only one child. For every parent, there must be only one child. And if you try to associate another child with this, if you try to associate another child, it will give you some error. It should give you some error. This is what the concept of one-to-one relationship. ठीक है? तो यहाँ पर वही बात आ रही है अभी कि between hiring manager and position, every hiring manager should be associated with only one position. They want this, client want this कि उसका जो भी hiring manager है, he should handle only one position at a time. उसके अलावा दूसरी पोजीशन, जब तक वो इस पोजीशन से फ्री नहीं होता है, टिल द टाइम द रिक्रूटमेंट, या फिर पोजीशन क्लोज हो जाए, या तो पोजीशन रिक्रूटेड हो जाए या फिर पोजीशन क्लोज हो जाए, उसके बाद हायरिंग मैनेजर को दूसरी पोजीशन दी जाए. टिल द टाइम ही जस्ट हैव वन पोजीशन सो दैट ही कुड फोकस ऑन हिज वर्क. ऐसा कुछ पॉलिसी बनाया है क्लाइंट ने, जिसके तहत अपने को भी अब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे उसके सीआरएम में. तो यहाँ पे व्हाट ही इज आस्किंग, पता है क्या, ही इज आस्किंग अस टू इम्प्लीमेंट वन टू वन एसोसिएशन. इसीलिए ये पता होना चाहिए. अगर ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है तो फिर ठीक है, आप कर लोगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे. तो वन टू वन और मिनी टू मिनी कुछ ऐसी चीजें हैं, सबसे पहली बात की कोई कवर ही नहीं करके देता. अपार्ट फ्रॉम दिस, अरे आप वो बोल रहे, आपको हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं पढ़ाई जाती, बस आपको लुकअप, एक्सटर्नल लुकअप पढ़ा देते हैं, और सॉरी, लुकअप एंड मास्टर डिटेल पढ़ा देते हैं, और एक्सटर्नल तो खैर मैंने भी असाइनमेंट दिया, मैं क्या बोलूं, बट एक्सटर्नल से वैसे ही है, लुकअप रिलेशनशिप जैसा ही है. बस ये कि आप एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेशनशिप जब भी स्टैब्लिश करना होता है तो आप उसको सिर्फ लुकअप ही कर सकते हो. और ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, वैसे इंटीग्रेशन में कवर हो ही जाता है. अगर मैं यहाँ नहीं भी पढ़ा रहा हूँ तो बाय द वे दिस इज गोइंग टू बी कवर इनसाइड द इंटीग्रेशन, इसलिए हम लोग भी स्किप करते हैं, मतलब मैं खुद स्किप करता हूँ उसको. तो ज्यादा से ज्यादा ना बस इतना बताते हैं. लोग तो हायरार्की भी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हायरार्की के यूजर ऑब्जेक्ट पे लेके जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और बहुत सारी बातें उसमें. तो यहाँ तक तो लेके जाना बहुत बड़ी बात है, वन टू वन, मिनी टू मिनी. लेकिन ये सिनेरियोज बनते हैं, दीज आर सम ऑफ द रियल टाइम सिनेरियोज, और फिर अगर आपको नहीं पता ना, आप फंस जाओगे, उसके आगे फिर आप नहीं बढ़ पाओगे. तो चलो, एटलीस्ट आप लोग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपको पूरा डिटेलिंग से हुआ हुआ है, इसलिए टेंशन मत लो. तो चलो, वेल नाउ वी सी कि कैसे एस्टैब्लिश करते हैं वन टू वन रिलेशनशिप. तो अभी देखो, जो हो गया उसके ऊपर तो रिकॉर्ड में कुछ मैं बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके आगे फ्रॉम हियर एंड फ्यूचर, फ्रॉम हियर टू फ्यूचर, यहाँ से लेके आगे तक, अब मैं ऐसा कुछ बिजनेस लॉजिक डिजाइन करूंगा कि हर हायरिंग मैनेजर एक ही पोजीशन के साथ अलॉट होगा. ठीक है. और जैसे ही एक से ज्यादा पोजीशन अगर एक हायरिंग मैनेजर को एक पोजीशन दी जा चुकी है और फिर आप एक नया पोजीशन क्रिएट करके उसी को वापस सिलेक्ट करते हो, तो आपको एरर आएगा. तो ये कैसे करते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स फॉर दिस. जब भी हम वन टू वन एसोसिएशन क्रिएट करना चाहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि वन टू वन रिलेशनशिप के लिए आपको दो चीजें लगती है. पहला, रोल अप समरी, जो मैंने अभी पढ़ाया, विद द काउंट फंक्शन. काउंट फंक्शन के साथ रोल अप समरी फील्ड काउंट, द काउंट फंक्शन, और सेकंड होता है आपका वैलिडेशन. दो चीजें लगती है. ठीक है. चलो, कैसे, तो रोल अप समरी तो कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता है. वैलिडेशन रूल कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ आपको. ठीक है. सो लेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके लिए मुझे हायरिंग मैनेजर और पोजीशन के बीच का रिलेशनशिप भी चेक करना पड़ेगा. तो बिकॉज हायरिंग मैनेजर और पोजीशन के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है वो भी देखना जरूरी है. सो लेट्स गो टू द स्कीमा बिल्डर फर्स्ट. स्कीमा बिल्डर पे जाते हैं, क्योंकि रोल अप समरी क्रिएट करनी है ना. तो रोल अप समरी क्रिएट करनी है तो हायरिंग मैनेजर और पोजीशन कैंडिडेट कस्टम ऑब्जेक्ट्स में से हायरिंग मैनेजर और पोजीशन के बीच का रिलेशनशिप मास्टर डिटेल है. तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो मास्टर डिटेल है ही ऑलरेडी, तो कोई इशू तो है ही नहीं फिर यहाँ पे, राइट. चलो, तो ये देखें आप, रिलेशनशिप का टाइप क्या है, मास्टर डिटेल. ठीक है. तो फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं.
तो अब हमें रोल अप समरी क्रिएट करना है। रोल अप समरीज आर ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द पेरेंट ऑब्जेक्ट। तो हायरिंग मैनेजर और पोजीशंस में से पेरेंट कौन है? हायरिंग मैनेजर। सो लेट्स गो टू दी हायरिंग मैनेजर, एक्सपैंड करो आप इसको और व्यू फील्ड्स के सामने न्यू फील्ड्स, एक नया फील्ड क्रिएट करो। व्हाट काइंड ऑफ फील्ड? रोल अप समरी। तो यहाँ इस लिस्ट में से आपने क्या सिलेक्ट करना है? रोल अप समरी सिलेक्ट करना है एंड गो टू द नेक्स्ट बटन। क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ? 1 to 1। 1 to 1 के लिए दो चीजें लगती हैं आपको, रोल अप समरी और आपका वैलिडेशन रूल। तो रोल अप समरी से ये पता चलेगा कि पोजीशन का काउंट क्या है। एक हायरिंग मैनेजर है तो उसने कितनी पोजीशन ले रखी है, ठीक है। पोजीशन काउंट नाम की एक फील्ड में क्रिएट करता हूँ। क्लिक द नेक्स्ट। फंक्शन क्या रहेगा? हाँ, समराइज ऑब्जेक्ट पोजीशन रहेगा, फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो और क्या, बस इतना ही। यहाँ पे मुझे फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है। गो विद द नेक्स्ट बटन, मेक इट विजिबल, क्लिक द नेक्स्ट एंड देन सेव इट, नथिंग एल्स। अब देखो मेरे पास में हायरिंग मैनेजर में एक फील्ड तैयार हो चुकी है ना, हायरिंग मैनेजर के अंदर एक फील्ड तैयार हो चुकी है आपकी रोल अप समरी फील्ड, रोल अप समरी ये वाला, ठीक है। पोजीशन काउंट नाम की। ये क्या बता रहा है हमको? लेट मी शो यू दैट, लेट्स रिफ्रेश दिस। तो अभी यहाँ पे जाके मैं काम करता हूँ, एक फील्ड लेके आता हूँ, एक कॉलम लेके आता हूँ यहाँ पे, पोजीशन काउंट नाम का कॉलम, और इसको यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ, सेव करता हूँ। चलो, तो ये बता रहा है कि जब जैसे हायरिंग मैनेजर है सचिन, तो सचिन कितनी पोजीशन हैंडल कर रहा है, कशिश कितनी पोजीशन हैंडल कर रहे हैं, शालिनी कितनी पोजीशन हैंडल कर रहे हैं, रवि कितनी पोजीशन, मनीष कितनी पोजीशन हैंडल कर रहे हैं, बराबर ऐसा। अभिनव शर्मा कितनी कर रहे हैं, श्वेता कुमारी कितनी पोजीशन हैंडल कर रहे हैं। अभिनव शर्मा 1 सेकेंड, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन वाले होंगे, नागपुर और पुणे वाले, ठीक है। तो ये कितनी पोजीशन हैंडल कर रहे हैं। तो ये आपको कहाँ से पता चल जाता है? पोजीशन काउंट नाम का आपने एक रोल अप समरी क्रिएट किया। कहाँ पर क्रिएट किया? पेरेंट ऑब्जेक्ट में, हायरिंग मैनेजर में। तो मुझे ये समझ में आ गया कि एवरी हायरिंग मैनेजर इज सर्टेनली हैंडलिंग हाउ मेनी पोजीशन। चलो, ये क्लियर हो गया। ये तो आपका स्टेप नंबर 1। क्या? एक ऐसा रोल अप समरी बनाओ जिसके तहत आपको ये पता चल जाए कि हर पोजीशन, हर हायरिंग मैनेजर कितनी अलग अलग पोजीशन हैंडल कर रहा है, काउंट कितना है उसका, ठीक है, काउंट कितना है। तो पोजीशन काउंट नाम से मैंने एक रोल अप समरी क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मुझे लगाने हैं वैलिडेशन रूल्स, ठीक है। तो वैलिडेशन रूल रोल अप समरी की तरह ही वैलिडेशन रूल्स भी आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट पे ही लगेंगे। जैसे रोल अप समरी होती है वैसे ही वैलिडेशन रूल्स आर आल्सो क्रिएटेड ऑन द पेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पेरेंट मतलब आपका यही हायरिंग मैनेजर। तो फिर से एक नया वैलिडेशन रूल क्रिएट करना है। तो आप देखो इसमें जरा सा आप नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ दिख रहा है व्यू वैलिडेशन रूल, उसके सामने न्यू। व्यू मतलब आपने कितने क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन रूल्स कितने क्रिएट कर रखे हैं? मैंने कुछ भी नहीं। यहाँ से भी न्यू बटन दबाऊंगा तो भी वही इंटरफेस आता है, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट दिखा रहा था आपके व्यू वैलिडेशन रूल्स के सामने में एक न्यू है, न्यू का बटन प्रेस करो तो आप ये इंटरफेस पे आते हो। तो रूल नेम हियर, लाइक मैं यहाँ पे एक रूल बनाता हूँ कि रिस्ट्रिक्ट द पोजीशन काउंट। पोजीशन के काउंट को रिस्ट्रिक्ट करो। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं ये नाम दे रहा हूँ, ठीक है। पोजीशन के काउंट को रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है। अब फॉर्मूला डिजाइन करना है। तो फॉर्मूला के लिए टेंशन मत लो, इंसर्ट द फील्ड। किसकी फील्ड चाहिए आपको? हायरिंग मैनेजर। हायरिंग मैनेजर में एक फील्ड हमने रोल अप समरी अभी जस्ट क्रिएट कर रखी है, पोजीशन काउंट नाम से, इंसर्ट करो। तो ये जो रूल है वैलिडेशन रूल, ये कब फायर होना चाहिए, मैं उसका फॉर्मूला दे रहा हूँ। तो ये तब फायर होना चाहिए, आई वॉन्टेड दिस रूल टू बी गेट फायर। वैलिडेशन क्या करता है? किसी चीज से रोकता है। मैं क्या बना रहा हूँ? वैलिडेशन रूल। ये क्या करने वाला है? ये रोकेगा आपको किस चीज से? इंसर्शन से। बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट, इसका जो लॉजिक होता है उसको बोलते हैं बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट। ये इंसर्ट होने से पहले चेक करता है कि भाई ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या नहीं, या अपडेट होने से पहले चेक करता है कि ये रिकॉर्ड को चेक। इसी को बोलते हैं वैलिडेशन। ये बिल्कुल ऐसा जैसे आप मॉल में जाते हो, गेट पर एक गेट कीपर खड़ा होता है, वो आपका सिक्योरिटी चेक करता है, उसके बाद वैलिडेट करता है कि हाँ आप मॉल में अंदर जा सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट कैरिंग समथिंग विच कुड हार्म एनीबॉडी एल्स। आपके पास कोई वेपन नहीं है, आपके पास कोई ऐसा ऐसा मतलब अनऑथराइज चीज नहीं है। तो उसने आपको सिक्योरिटी चेक किया और वैलिडेट किया। नाउ यू कुड इंसर्ट, अब आप इंसर्ट कर सकते हो, अब आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये होता है आपका वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल हमेशा कौन सा इवेंट है इसका? बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट। इट इज ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज द इवेंट ऑफ वैलिडेशन रूल? इवेंट क्या है उसका? इवेंट मतलब ये कब फायर होता है। तो वैलिडेशन रूल्स आर ऑलवेज फायर्ड बिफोर इंसर्ट बिफोर। अरे एक बार बंदा अंदर चला गया हथियार लेके, उसके बाद क्या का फायदा है चेक करके? समझ रहे हो मेरी बात? मैंने आपने सिक्योरिटी अंदर नहीं, गेट पे नहीं चेक करी, अब वो बंदा तो अंदर घुस गया, यानी आफ्टर इंसर्ट हो गया, आफ्टर अपडेट हो गया। अब क्या कर लोगे आप चेक करके? उसको तो जो करना है वही कर लेगा।
वो तो बिफोर इंसर्शन अगर आप चेक करोगे तो फायदे की बात है, तो कोई मतलब का वैलिडेशन रूल है। आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, व्हाट यू कैन डू दैट, अब तो वो खत्म हो गई, पिक्चर ही बात ही खत्म हो गई, हटाओ उसको। समझ में आ रही बात, ऐसा है ये। तो वैलिडेशन रूल का जो इवेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज राइट इट डाउन। आई हैव नॉट रिटन दिस, मैं भी लिखता हूँ बाद में, अभी अभी डिस्कशन चल रहा है अपना, मैं बाद में अपडेट करता हूँ नोट्स को। पहले आप लिखो कि व्हाट इज द इवेंट ऑफ वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल्स आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ऑलवेज फायर्ड, कुछ भी बोलो, बात एक ही है। बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, जब भी आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो उससे पहले, या आप किसी पुराने रिकॉर्ड में अपडेशन करते हो उसके पहले। बिफोर इंसर्शन, बिफोर अपडेट फायर होता है, आफ्टर थोड़ी ना होता है कभी। ठीक है, बिफोर इंसर्शन, बिफोर अपडेट, वैलिडेशन रूल्स फायर होते हैं। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि मैं ये रूल को कब फायर करना है उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि अगर पोजीशन काउंट इज ग्रेटर देन 1, पोजीशन काउंट अगर एक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो हायरिंग मैनेजर एक पोजीशन, 0 पोजीशन एक कर दिया कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा जैसी हो, अगर उस हायरिंग मैनेजर के साथ में एक पोजीशन है और आप दूसरी दे रहे हो, तो पोजीशन काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो वो रूल फायर हो जाना चाहिए और उसने रोक देना चाहिए। ठीक है, अगर ये रोकता है तो क्या एरर मैसेज दे, वो एरर मैसेज अपन यहाँ लिखेंगे। तो अपन एरर मैसेज लिखते हैं कुछ इस तरह से कि द दिस, यार दही करते हैं उसको, द हायरिंग मैनेजर इज बिजी विथ अनदर पोजीशन, काइंडली सिलेक्ट, busy with the position, busy with the position, POSI, kindly select another hiring manager for this report, like this. ठीक है, so hiring manager, the hiring manager is busy. Hiring manager is busy with the position. Kindly select another hiring manager for this record. ऐसा एक मैसेज, ये मैसेज कहाँ आना चाहिए, टॉप ऑफ द फील्ड या फिर फील्ड पर। तो फील्ड मतलब कौन से फील्ड पर, है ना, तो उसके बेटर है मैं टॉप ऑफ द, एरर सारे टॉप पे डिस्प्ले करते हैं जनरली, अनलेस एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड ऑन द फील्ड। तो आई वांट दिस मैसेज टू बी गेट डिस्प्लेड ऑन टॉप ऑफ द पेज, इसलिए मैं इसको टॉप ऑफ द पेज रखता हूँ। अगर मैं फील्ड लूंगा तो फिर मुझे फील्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी फील्ड पे। ठीक है, तो हायरिंग मैनेजर नेम पर भी दे सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो टॉप ऑफ द फील्ड पे दे देते हैं इसको। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट चेक द सिंटैक्स, ये सिंटैक्स मेरा सही है कि नहीं है। तो नो एरर्स फाउंड, मतलब ये एरर मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दिस इज हाउ आई सेट अप वैलिडेशन रूल। लेट मी नाउ सेव दिस, मेक इट एक्टिव, वैसे वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो ही चुका है। ठीक है, सो नाउ यू हैव डन विद एवरीथिंग, हो गया आपका, एक्चुअली बन गया है, 1 to 1 बन गया है। कैसे, पहले रोलअप समरी बनाया, फिर वैलिडेशन बनाया, उसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब चलो, अब इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार तो मैं पोजीशन में देख लेता हूँ कि ऑल पोजीशंस। ठीक है, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि जावा डेवलपर को, नहीं नहीं, हायरिंग मैनेजर पे गलत जा रहा हूँ, हायरिंग मैनेजर पे जाके मैं देख लेता हूँ कि जैसे कि ऑल, यहाँ पे मैंने यार फील्ड लेके आया था, पोजीशन काउंट लेके तो आया था मैं यहाँ पे। ठीक है, सेव इट, उसे गलत जगह लाया था शायद मैंने, हाँ। सो आई एम नॉट सीइंग दैट, यू नो, कि कौन सा हायरिंग मैनेजर है और कौन सी पोजीशन है। अभी जैसे मुझे दिख रहा है कि अभिनव शर्मा हु इज फ्रॉम पुणे लोकेशन, है ना, he doesn't hand, or rather Manish is one of the hiring manager which presently is not handling any position. तो मनीष को कोई पोजीशन नहीं है अभी। तो एक काम करते हैं, पहले एक पोजीशन अप्लाई करते हैं और मनीष को देते हैं, एक नया पोजीशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपेक्स प्रोग्राम, and HR email ID is apex@apex.com. It's a new position. Give the contact number. Number of vacancies 10. Location is Delhi. ठीक है, तो फिल्टर तो मैं ऑलरेडी हटा चुका हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम बजट, मैक्सिमम बजट, ठीक है,
नाउ लेट्स ट्राई टू गिव दिस पोजीशन टू मनीष। अभी मनीष के पास कोई पोजीशन है नहीं, तो मनीष को मैं दे देता हूँ। लेट मी नाउ सेव दिस। ये हो गया सेव, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे मनीष का 0 था। लेट मी नाउ रिफ्रेश दिस, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो अभी आप देखो मनीष के साथ एक पोजीशन एसोसिएट हो गई, ना मनीष इज हैंडलिंग वन पोजीशन। अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी क्रिएट वन मोर पोजीशन। ठीक है, एक और पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ वीएफ प्रोग्रामर के नाम से। ठीक है, एंड लेट मी वंस अगेन ट्राई टू गिव दिस पोजीशन टू मनीष, है ना। मैं मनीष को देने की पोजीशन करता हूँ। लेट मी सेव दिस, सी व्हाट हैपेंस। एरर, हायरिंग मैनेजर इज बिजी विद द पोजीशन, काइंडली सिलेक्ट अनदर हायरिंग मैनेजर फॉर दिस रिकॉर्ड। तो ये है आपको वैलिडेशन रूल। तो वैलिडेशन रूल जब फायर हुआ फर्स्ट टाइम, तो उसने देखा कि मनीष के लिए पोजीशन काउंट क्या था। तो इसके पहले मनीष के लिए पोजीशन काउंट क्या था, 0। तो आपने फॉर्मूला क्या बनाया कि पोजीशन काउंट शुड, इफ पोजीशन काउंट इज ग्रेटर देन 1 तभी रूल फायर हो। तो उस वक्त क्या था, पोजीशन काउंट 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो रूल फायर नहीं हुआ। तो आपने एक पोजीशन इंसर्ट कर दिया। और सेकेंड टाइम अब जब आप कर रहे हो, तो ना, अब जब आप कर रहे हो तो मनीष का काउंट क्या है, 1। और जैसे आप ये पोजीशन इंसर्ट करोगे, काउंट बिकम्स 2। काउंट बिकम्स 2, पहले रोल अप समरी फायर होता है, तो काउंट बिकम्स 2। तो अब वो हो गया, पोजीशन काउंट इज 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, है ना, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो रूल फायर हो गया, और रूल फायर होती है आपको रोक दिया। नो, यू कैन नॉट स्टोर दैट, यू कैन नॉट सेव दिस रिकॉर्ड। कितनी भी बार आप ट्राई करो, यू कैन नॉट सेव दिस रिकॉर्ड, सेम एरर इज गोइंग टू बी अकर्ड। तो दिस इज वैलिडेशन रूल, बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट। ये होता है वैलिडेशन रूल। हायरिंग मैनेजर इज बिजी विद द पोजीशन, काइंडली सिलेक्ट अनदर हायरिंग मैनेजर। अब मैं ये नहीं कर सकते आप इसको, मनीष को तो ले ही नहीं सकते आप। हो गया, जो इंप्लीमेंट करना था आ गया। कोई जैसे अभिनव शर्मा फ्रॉम पुणे लोकेशन, वो खाली पड़ा हुआ है। तो लेट्स सेलेक्ट द मिस्टर अभिनव शर्मा who is from the नागपुर, who is from the पुणे, ये वाला। अब मैं अगर सेव करूंगा तो कोई इशू नहीं, हो गया सेव। ये है, तो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंटेड द, वो जो नया पॉलिसी आया था क्लाइंट का कि भैया एक हायरिंग मैनेजर एक पोजीशन के साथ होना चाहिए, तो वो इम्प्लीमेंट कर दिया आपने। ठीक है, अब जो पुराने वाले कशिश वगैरह, ये पुराना रिकॉर्ड है, उस पर नहीं होता। ये वैलिडेशन रूल हमेशा फ्रेश इंप्लीमेंटेशन पे आता है, जो आपने फ्रेशली आप इंप्लीमेंट करते हो, पुराने के साथ नहीं होता ये कुछ भी। तो इसको छोड़ दो, लेकिन हाँ, इसमें कुछ एडिट करोगे ना आप, जैसे कुछ एडिट करोगे आपको एरर आ जाएगा, तो एक एक रिकॉर्ड फिर रिमूव करना पड़ेगा इसमें से। तो पुराने इंप्लीमेंटेशन पे वैलिडेशन काम नहीं करता, इट ऑलवेज वर्क विद द फ्रेश इंप्लीमेंटेशंस। तो दिस इज हाउ वी सेट अप रोल अप समरी, दिस इज हाउ वी सेट अप वैलिडेशन, एंड दिस इज द वे टू क्रिएट वन टू वन एसोसिएशन। और इतना कोई नहीं बताता, यकीन मानो, लेकिन ये जरूरत पड़ती है वन टू वन और मेनी टू मेनी, बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है इसकी। आई एम टेलिंग यू दिस। मेनी टू मेनी का सिनेरियो क्या है बताओ, मेनी टू मेनी का सिनेरियो क्या है, यस, मेनी टू मेनी का सिनेरियो क्या है, सिनेरियो पूछ रहा हूँ मैं, रिक्वायरमेंट क्या जरूरत पड़ती है मेनी टू मेनी पे, कब जरूरत पड़ती है जानने की। हाँ अक्षय, बोलो बोलो, यू हैव अनम्यूटेड। मेनी टू मेनी का सिनेरियो, जंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। नहीं क्या वो, तो ये आप बता रहे हो कि कैसे बनाना, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जरूरत क्या पड़ती है, आप मेनी टू मेनी के दरवाजे कब जाओगे, सिनेरियो सिनेरियो। अच्छा, ओ सर, पेरेंट मतलब दोनों ऑब्जेक्ट नॉट बी पेरेंट नॉट बी चाइल्ड। हाँ वेरी गुड। नहीं एक्चुअली नॉट बी पेरेंट नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट कैन नॉट बिकम द चाइल्ड, बोथ ऑफ देम बिकम्स द पेरेंट, है ना। बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों पेरेंट है, चाइल्ड नहीं बन रहे हैं, तब आप जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो क्या होता है, चाइल्ड। ये था मेनी टू मेनी का। वन टू वन जैसे आपको समझ गया, इफ यू एट ऑल यू वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट, यू नो, इफ यू वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट वन पेरेंट टू हैव ओनली वन चाइल्ड, ठीक है, यहाँ फैमिली प्लानिंग करके रखी हुई है अपन ने कि वन पेरेंट इज ओनली वन चाइल्ड। चाइना ने कर रहा है अभी 2 चाइल्ड तक, उसके ऊपर नहीं जान दे रहा है वो। सो वन पेरेंट विद वन चाइल्ड, इफ दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन यू वांटेड टू पुट एट ऑल, तब जाते हैं अपन वन टू वन पे। और वन टू वन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वी रिक्वायर 2 थिंग्स। एक चीज का नहीं होगा, एक तो पहले सबसे पहले रोल अप समरी क्रिएट करो विद द काउंट फंक्शन, सो दैट यू कुड डिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ काउंट। और दूसरा आपका वैलिडेशन रूल, जिसमें ये आपका ये जो अलॉटेड पोजीशन है, जो कुछ भी शुड बी ग्रेटर देन 1, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 वैलिडेशन रूल विल बी फायर। वैलिडेशन कब फायर होता है, व्हाट इज द इवेंट ऑफ वैलिडेशन, बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट, उसके बाद नहीं। उसके बाद इसका मतलब ही नहीं होता है, अगर आफ्टर इंसर्शन इंसर्शन हो गया एक बार, तो फिर फायदा क्या है। सिक्योरिटी चेक्स कब होते हैं, दरवाजे पे होते हैं। बंदा अंदर आ गया तो उसके बाद सिक्योरिटी चेक नहीं होता है, वो दरवाजे पे होते हैं। अगर कोई गलत आदमी आ रहा है तो उसको वहीं रोक दो, गलत चीज को अंदर मत जाने दो, राइट। So that is what the validation rule is. Now, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ पहले।